السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جون کی 15 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے عمران خان کی حکومت کے خلاف بیرونی سازش کی تردید پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سخت رد عمل دیا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی اس معاملے پر بحث جاری ہے۔ عمران خان کی حکومت کو بیرونی سازش کے ذریعے ختم کیے جانے کے دعوے کی تردید کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں کے اس مطالبے میں بھی شدت آ گئی ہے کہ غیر ملکی مراسلے کے معاملے پر عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے منگل کو نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز کے پروگرام میں اینکر پرسن کامران شاہد کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، تینوں سروسز چیفز، ڈی جی آئی کی موجودگی میں ایجنسیز کی جانب سے شرکاء کو بہت مفصل انداز میں بتایا گیا تھا کہ کسی قسم کی کوئی سازش یا اس قسم کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں۔ مداخلت اور سازش سے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ یہ لفظ سفارتی سطح پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس پر جو بھی کارروائی کی گئی وہ سفارتی سطح پر کی گئی۔ پاکستان کے سابق وزیر دفاع پرویز خٹک نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے حالیہ بیان پر کہا ہے کہ وہ اس معاملے کا حل جوڈیشل کمیشن کے قیام کی صورت میں دیکھتے ہیں، تاکہ واضح ہو سکے کہ آیا سازش تھی یا نہیں۔ ان کے بقول قومی سلامتی کمیٹی نے خود پاکستان کے معاملات میں بیرونی مداخلت کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کی وطن واپسی کے حوالے سے بحث کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی پرویز مشرف کے حوالے سے مثبت بیان دیا ہے، اور پاکستان کی فوج نے بھی ان کی وطن واپسی کی حمایت کی ہے، جس کے بعد پرویز مشرف کی وطن واپسی میں بظاہر کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان کی پارلیمان میں بھی اس حوالے سے متضاد رائے سامنے آ رہی ہیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرف کی واپسی میں کوئی قانونی قباحت نہیں ہے، البتہ جن کیسز میں وہ اشتہاری ہیں ان میں طبی بنیادوں پر انہیں ضمانت مل سکتی ہے۔ ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے منگل کو تہران میں ہونے والی ملاقات میں افغانستان پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے افغانستان میں جامع حکومت کے قیام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو افغانستان میں سلامتی اور استحکام کے خدشات ہیں۔ افغانستان کی سپریم کورٹ کے دفتر کی متعدد خواتین ملازمین نے بدھ کو سپریم کورٹ کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں گزشتہ 10 ماہ کی تنخواہیں نہیں ملی ہیں۔ طالبان حکومت ہمیشہ یہ دعویٰ کرتی آئی ہے کہ حکومت خواتین ملازمین کو ان کے گھر میں رہتے ہوئے تنخواہ دیتی ہے۔ سیگار نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ سن 2022 کے وسط تک طالبان کے قبضے کے بعد سے ملازمتوں میں ہونے والے کل نقصانات 7 لاکھ اور 9 لاکھ کے درمیان ہونے کا امکان ہے۔ خواتین خاص طور پر متاثر ہیں۔ طالبان کے قبضے سے پہلے کی سطح کے مقابلے میں سن 2022 کے وسط تک خواتین کی ملازمین کی سطح 21% کم ہونے کا امکان ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اقتدار سنبھالنے کے بعد سے طالبان ہر اس شخص پر دھمکیاں، ایذا رسانی اور تشدد کا استعمال کر رہے ہیں جس نے انسانی حقوق یا جدید اقدار کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک ٹویٹ میں افغان یوٹیوبر اجمل حقی کی حالیہ گرفتاری کا حوالہ دیا اور کہا کہ طالبان کو اجمل حقی کی جبری نظر بندی ختم کرنی چاہیے۔ بھارت کی حکمراں جماعت بی جے پی کے 2 رہنماؤں کے متنازع بیانات پر جمعے کو ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے شرکاء کے خلاف پولیس کارروائی اور ان کے مکانات کے انہدام کی سابق ججز، ماہرین قانون، انسانی حقوق کے کارکنوں اور سول سوسائٹی کی جانب سے مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के तीन साबिक जजेस समेत 12 मुमताज़ खानदानों ने सुप्रीम कोर्ट के नाम में एक ख़त में उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर आइन और दस्तूर का मजाक उड़ाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए अपील की है कि वो एहतजाज करने वाले मुसलमानों पर रियासती हुकूमत के मुबैना तशद्दुद और जबर के मामले में मुदाखलत करे और अज़ खुद कार्रवाई करे। इंसानी हुकूक के आलमी इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारतीय हुकूमत से अपील की है कि वो मुल्क में पुरअमन मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ इजाफ़ी पुलिस फ़ोर्स की तैनाती ख़त्म और बक़ौल उसके मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी बंद करे। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हुकूमत ने जमात इस्लामी जम्मू और कश्मीर के फलाह-ए-आम ट्रस्ट के एहतमाम से चलाए जाने वाले सभी 300 से ज़ायद स्कूलों में दर्स व तदरीस पर बाज़ाब्ता पाबंदी लगा दी है और चीफ़ एजुकेशन अफसरों को हुक्म दिया है कि वो मुतल्लिक़ा अज़ला की इंतज़ामिया के साथ सलाह मशवरे के बाद इन स्कूलों में 15 दिन के अंदर उन्हें सील कर दें। एक आला हुकूमती ओहदेदार BK सिंह की तरफ से जारी किए गए हुक्मनामे में कहा गया है कि इन स्कूलों में ज़ेर तालीम तालिब इल्म अपने अपने इलाके में वाक़ई सरकारी स्कूलों में फौरी तौर पर दाखिला ले सकते हैं। फलाह-ए-आम ट्रस्ट स्कूलों पर बंदिश के हुकूमती फ़ैसले की अपोजिशन जमातों ने शदीद तनक़ीद की है और सोशल मीडिया पर भी उसके ख़िलाफ़ गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है। बाज़ नाक़िदीन ने इस इक़दाम को भारत की मौजूदा हुकूमत के हिंदुत्व एजेंडे का एक हिस्सा करार दिया है। नई दिल्ली आसियान ग्रुप के साथ ताल्लुकात की 30वीं सालगिरह के मौके पर जुमेरात से आसियान वज़राए ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास मुनक़िद करेगा और ताउन को फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख़याल होगा। सन 2022 को भारत आसियान दोस्ती का साल नामज़द किया गया है। 10 जून को एक न्यूज़ ब्रीफिंग में बात करते हुए भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि आसियान भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत बुनियादों पर खड़ी है। अगरचे भारत और आसियान के वज़राए ख़ारजा हर साल मुलाकात करते हैं, लेकिन नई दिल्ली में होने वाले इस इजलास को खुसूसी अहमियत हासिल है। और अब आलमी ख़बरों में पहले यूक्रेन रूस की सूरत हाल। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने मंगल के रोज़ बहरे अस्वद की बंदरगाहों की रूसी नाकाबंदी में फंसे हुए अनाज की बरामद में सहूलत फराहम करने के लिए यूक्रेन की सरहदों पर साइलो तामीर करने के मगरबी मंसूबे का ऐलान किया। बाइडन ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को अमेरिका में खुराक की बुलंद कीमतों का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वो अमेरिका के यूरोपी शराकतदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि यूक्रेन में बंद 20 मिलियन टन अनाज को मार्केट में लाया जा सके और खुराक की कीमतों में कमी लाई जा सके। फ्रांसीसी खबरसां इदारे एजेंसी फ्रांस प्रेस के मुताबिक बाइडन अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में ट्रेड यूनियन के कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन आज बुध को नेटो के रुकन ममालिक और दुनिया के दीगर हिस्सों से अपने दर्जनों हम मनसबों के एक इजलास की क़यादत कर रहे हैं ताकि रूस के तकरीबन 4 माह के हमले के बाद यूक्रेन के लिए फ़ौजी इमदाद में इजाफे की ताज़ा तरीन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया जा सके। ये बातचीत ब्रसल्स में नेटो हेडक्वार्टर में नेटो के वज़राए दिफा के इजलास के मौके पर हो रही है। यूक्रेन के दिफाई राब्ता ग्रुप की गुज़श्ता माह एक वर्चुअल मीटिंग ने तकरीबन 50 ममालिक के नुमाइंदों को मुतवज्जे किया और नए इमदादी पैकेजों का वादा किया। यूक्रेन के हुक्काम बैनुल-अक़वामी शराकतदारों पर जोर देते हैं कि वो रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेनी अफ़वाज की मदद के लिए मज़ीद हथियार ख़ास तौर पर भारी तोपखाना भेजें। नेटो के सेक्रेटरी जनरल यान्स स्टॉल्टनबर्ग ने मंगल को सहाफ़ियों को बताया कि यूक्रेन के पास ज़्यादा भारी हथियार होने चाहिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की अफ़वाज इस पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करती हैं कि वो वहशियाना रूसी हमले के ख़िलाफ़ खड़े हो सकें। ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब रूसी अफ़वाज मशरक़ी सनती शहर सेवरोदोनेत्स्क का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए ज़ोर दे रही हैं, जो डोंबास इलाके में वाक़ है और जिसे रूस ने यूक्रेन में अपनी कार्रवाई का बुनियादी मरकज़ करार दिया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगल को देर गए एक वीडियो पैगाम में कहा कि डोंबास में डटे रहना बहुत ज़रूरी है।
डोंबास इस फैसले की कलीद है कि आने वाले हफ्तों में कौन गलबा हासिल करेगा। इंसानी हकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पीर को रूस पर यूक्रेन में जंगी जराइम का मुर्तकिब होने का इल्ज़ाम लगाया। तंजीम ने इस सिलसिले में हवाला दिया कि रूस ने यूक्रेन के शहर खार्कीव पर हमलों में, जिनमें से बहुत से ममनुआ क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया, सैकड़ों शहरी मारे गए थे। फ्रांसीसी खबरसां इदारे एजेंसी फ्रांस प्रेस के मुताबिक एमनेस्टी ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर के बारे में एक रिपोर्ट में कहा कि खार्कीव में रिहायशी मोहल्लों पर बार बार की जाने वाली बमबारी अंधाधुंध हमले हैं। एमनेस्टी ने कहा कि इन रूसी हमलों में सैकड़ों यूक्रेनी शहरी हलाक और जख्मी हुए हैं और ये जंगी जराइम हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम ने मंगल को बताया कि यमन भर में 2 अप्रैल से आरजी जंगबंदी ने कुछ मुश्किलात को कम किया है, लेकिन मुल्क को अब भी खुराक के खतरनाक बहरान का सामना है, जिसमें 19 मिलियन अफराद भूख का शिकार हैं। अमेरिका में एक हुकूमती मुशावरती पैनल ने स्कूल जाने वाले बच्चों और नौउम्रों के लिए कोविड वैक्सीन के एक दूसरे ब्रांड की तौसीक की है। माहिरीन पैनल ने मंगल को इस बात पर इत्तेफाक किया कि मॉडर्ना की बनाई गई वैक्सीन 6 से 17 साल की उम्र के अमरीकी बच्चों को देने के लिए काफ़ी महफूज और मौसर है। यूरोपीय यूनियन के मुनशियात की रोकथाम के इदारे ने कहा है कि मुनशियात की स्मगलिंग और इस्तेमाल पूरे ब्लॉक में वबा से कब्ल की सतह पर वापस आ रहा है। एजेंसी का कहना है कि कुछ मकामात पर मुनशियात बड़ी मिक़दार में दस्तयाब हैं और कुछ वाक़यात में पेंडेमिक की वबा से कब्ल की सतह से ज़्यादा मिक़दार में हैं। सैकड़ों गैरकानूनी अद्वियात साज लेबॉरेटरियों को मुनज़्ज़म किया जा रहा है और हर हफ्ते यूरोपीय मुल्कों में नए सुकून बख्श केमिकल्स मंजर आम पर आ रहे हैं। इदारे का कहना है कि सन 2021 में 52 नई सुकून बख्श अद्वियात पहली बार रिपोर्ट हुई हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेइंतहा मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।